कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ही ठीक होंगे, मज़े में होंगे। ये है द बहाई टेम्पल हाउस ऑफ वर्शिप। ये शिकागो में है। कुछ हफ्ते पहले हम शिकागो विज़िट करने गए थे एक वीकेंड के लिए। इट वाज इन द बिगिनिंग ऑफ जून एंड दैट इज़ व्हेन वी विजिटेड दिस प्लेस। तो हम शिकागो तो बहुत मर्तबा गए हैं, hundreds of times, but we did not know about this beautiful temple. It is an international house of worship. The building was closed due to the COVID lockdown, but बाहर से हमने पूरा walk करके देखा. The architecture on this building is absolutely amazing, outstanding. I loved it. The whole building is circular and is surrounded by various sections of meditation gardens that have been created for meditation purposes, and it is in a very good location of Chicago. उसके एक कोने में से लेक मिशिगन भी दिखता है। शिकागो डाउनटाउन से थोड़ा दूर है। It is about 45 minutes drive from downtown Chicago, but it is worth the drive and the visit. It was unfortunate that the building was closed, so we couldn't see it from the inside, but we got to spend good time outside. It was a beautiful, very bright and sunny day. तो जब मैं ये वीडियो ले रही थी, it was very hard to see on my phone screen मैं क्या कैप्चर कर रही हूँ, इतनी धूप थी। और यहाँ पे शादियाँ भी होती है, तो कोई शादी की तैयारियाँ हो रही थी वहाँ पे। The couple was getting pictures taken and there was one area that was set up with chairs and stuff, and I think the wedding was supposed to be sometimes in the evening. But it is absolutely worth a visit if you are anywhere in Midwest, North America, and you can get to Chicago. If you ever plan a visit to Chicago, Baha'i Temple is a place to visit. Take good couple of hours of your time and do go visit. You will really enjoy the beauty and the serenity that you feel over there. तो आई एम होपिंग कि आपको ये छोटा सा बहाई टेम्पल का टूर पसंद आया। आप ज़रूर प्लान करना, अगर आपको टाइम मिले शिकागो जब गए हो तो ज़रूर जाना, और प्लीज़ एक लाइक बटन भी प्रेस कर देना। इट हेल्प्स माय वीडियोस गेट एक्सपोज्ड ऑन यूट्यूब, तो आई अप्रिशिएट इट वेरी मच। तो बस ये था बहाई टेम्पल का टूर, जो मुझे तो इतना अच्छा लगा, तो आई हैड टू शेयर विद ऑल ऑफ माई लवली यूट्यूब फ्रेंड्स। तो बस आज मैं रेसिपी में मसाला मटर पनीर बना रही हूँ। मटर पनीर हम सब बनाते हैं, बट ये जो ग्रेवी मैंने दिखाई थी कुछ हफ्ते पहले, उसको यूज़ करके ये मटर पनीर बना रही हूँ। तो जो नए कुक्स होते हैं, जिनको अगर नहीं आता है या जिसने भी वो ग्रेवी बना के ट्राई की है, तो आई थॉट आई विल शेयर दिस रेसिपी। तो यहाँ पे तेल में पनीर के क्यूब्स सिर्फ सॉटे कर रही हूँ। मुझे ब्राउन किया हुआ अच्छा तला हुआ पनीर पसंद आता है, तो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन, एंड दिस इज़ द ग्रेवी दैट आई हैड शोन इन कपल वीडियोज़ अगो। तो बस यही यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा वो जो पनीर सॉटे किया हुआ ऑयल बचा था, उसी में मैंने थोड़ा राई जीरा डाला है, cumin and mustard seeds, I think, yeah, and then a little bit of curry leaves and some hing and turmeric powder, and then I will add some of the gravy that was already pre-cooked and ready to go. So some of it I am going to be using for the matar paneer, the rest will be cooled and frozen for later use. The gravy, you can make multiple different vegetables. Pav bhaji is the best one you can make, matar paneer, any gravy vegetable, Punjabi style.
तो बस इसको थोड़ा क्रीमी करने के लिए आई एम एडिंग 2 स्पूनफुल्स ऑफ whole milk yogurt and thinning it down with water. Keep stirring continuously because you have just added the yogurt. तो बस वो yogurt को थोड़ा कुक होने देना है ग्रेवी के साथ ब्लेंड होने के लिए. And now I am adding a spoonful of kasuri methi or dried methi leaves. Just crush them between your palms like so and add it to the gravy that is cooking. It adds a very mild but lovely flavor. It's not bitter whatsoever. तो कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करें अपनी पंजाबी डिशेस में, थोड़ी सी 1 चम्मच भर, और क्रश इट इन योर palms, तो बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है. एंड नाउ आई एम एडिंग सम फ्रोज़न ग्रीन पीस. तो ग्रीन पीस तो एज़ यू नो ऑलरेडी थोड़ी माइल्डली प्री कुक्ड होती है, तो उसको थोड़ा ग्रेवी में डाल के लेट इट स्टीम इन इट्स ओन मॉइस्चर. तो ग्रेवी भी थोड़ी थिन हो जाएगी और मटर भी कुक हो जाएंगे. मुझे थोड़ी क्रीमीनेस कम लगी तो मैंने थोड़ा योगर्ट ऊपर से और ऐड किया. तो क्रीमीनेस के लिए योगर्ट इज़ बेस्ट. उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है और फैट भी कम होता है. बट अगर योगर्ट नहीं डालना है तो एंड ऑफ द कुकिंग प्रोसेस यू कैन ऐड होल क्रीम या मलाई जिसे बोलते हैं, बट आई प्रेफर योगर्ट एज अ हेल्दियर वर्जन. तो जस्ट लेटिंग द ग्रीन पीस कुक अ लिटिल बिट एंड देन बस ग्रीन पीस कुक हो जाएंगे तो बस सॉटे किया हुआ पनीर ऐड करके ऐड अ लिटिल बिट वाटर. जो कंसिस्टेंसी की ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दो आप, और बस उसको ढक के थोड़ी देर सिमर होने देना है, ज़्यादा देर नहीं. पनीर ज़्यादा कुक करेंगे तो बिल्कुल रबड़ जैसा चूई हो जाएगा. तो पनीर को बस थोड़ा स्टीम होने देना है, बिल्कुल भी कम आंच पे, और थोड़ी देर के लिए, मे बी लाइक लेस देन 1 minute ऑफ कुकिंग. द मोर यू कुक पनीर द चूइयर इट गेट्स लाइक चूइंग. तो पनीर को सॉफ्ट रखना है तो बस उसको थोड़ी देर ऐसे गर्म होने दो और बंद कर दोगे, वो गर्म अपनी स्टीम में ही कुक होता रहेगा. तो ये इंस्टेंट जब अगर ग्रेवी बना के रखी हो तो ऐसी लेस देन 5 minutes में बनने वाली मज़ेदार टेस्टी पराठों के साथ, राइस के साथ, रोटी के साथ, बस मस्त पंजाबी सब्ज़ी तैयार हो जाती है और वक्त भी बहुत कम लगता है. तो ग्रेवी बना के रखने का ये एक फ़ायदा है. तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर वो ग्रेवी बनाएं और ट्राई करें, और इस रेसिपी के लिए प्लीज़ एक लाइक कर दें. तो मैं पराठों के साथ ये ग्रेवी सर्व करने वाली हूँ. तो बस मैं वो पराठे बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ मैं ये एक टिप शेयर करती हूँ. It's not about how to make parathas because we know how to make parathas, but the way I make it is a little different. तो बस आटा तो जैसे हम पराठे का गूंथते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आपके पराठे का आटा. मेरा थोड़ा सख्त होता है, रोटी से थोड़ा हार्ड. तो मैं जब भी कुकिंग या कोई भी काम करती हूँ ना, आई प्रेफर ए असेंबली लाइन टाइप ऑफ प्रोसेस. तो सारे एक तरह के काम एक साथ में करिए. यानी कि ये देखो, जैसे आटे की मैंने सारी लोई बना दी. ऑल द लोईज आर रेडी टू गो. नाउ दिस इज़ वेयर इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट व्हाट आई डू. यूजुअली जब हम पराठे बनाते हैं तो एक पराठा हम बेलते हैं और तवे पे डालते हैं, और फिर जब वो पक रहा होता है तो हम दूसरा पराठा तब तक बेलना, पराठा हो, रोटी हो, थेपला, आप जो भी बनाते हो रोटी टाइप्स ऑफ आइटम, तो हम एक बेलते हैं, एक सेकते हैं, एक बेलते हैं, एक सेकते हैं. उसमें मोमेंटम मेरा ब्रेक हो जाता है. तो ये मेरा ट्रिक है जो मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है, इजी लगता है, और टाइम मेरा 2/3 ऑफ टाइम में मेरी सारी रोटियां बन जाती हैं. यानी मैं
अगर मुझे समझो 15 मिनट लगती है ये काम करने को, तो ये काम मेरा 10 मिनट में हो जाता है इस तरह से। और क्या करना है कि सारे पराठे, इवन रोटियां मैं करती हूँ, रेगुलर फुल्का चपाती सारी बेल के रख दो एक साथ। थोड़ा जब ड्राई आटा लगाया होता है तो चिपकती बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं उनको सारा ऐसे फैला के एक साथ सारे पराठे, सारी रोटियां बिल्कुल बेल के सेटअप कर देती हूँ इस तरह से। तो ये सारे पराठे बिल चुके हैं एंड दिस मेक्स द वर्क ईजी बिकॉज यू आर इन अ मोमेंटम ऑफ रोलिंग दैम। और फिर 2 तवे चढ़ा के 1 बाय 1 एक तवे पे कच्चे पक्के पकते हैं और ये जो एल्युमिनियम का तवा है विच इज़ क्लोज़र टू द स्क्रीन, इस पे तेल लगेगा। तो ऑल्टरनेटली डबल 2 पराठे एक साथ सेकते हुए बहुत जल्दी ये सारे पराठे सिक जाते हैं। एंड दिस असेंबली लाइन टाइप ऑफ प्रोसेस really makes my paratha cooking super fast, and that makes me want to make parathas, क्योंकि मुझे इतनी देर नहीं लगती जितनी यूजुअली पराठे बनाने में लगती है। सॉरी, ये एल्युमिनियम का नहीं, आयरन का, लोखंड का तवा है। तो लोखंड के तवे पे मैं तेल वाला करके सेकना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उस पे ना कलर बहुत अच्छा चढ़ता है। मुझे किसी भी चीज़ पे अच्छा ब्राउन कलर हो, थोड़ा ओवरडन लगता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो जैसे अपने पनीर में देखा मैंने उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ब्राउन किया था, मेरे पराठे पे भी आप एक्स्ट्रा ब्राउन दाग देखेंगे। तो मुझे ये जो क्रिस्पनेस आती है ना चीज़ों में, मुझे अच्छी लगती है। तो तेल वाला लोखंड के तवे पे करेंगे और वो नॉन स्टिक है ना पीछे, उस पर बस मैं थोड़ा कच्चा पक्का दोनों तरफ से पका रही हूँ। तो बिल्कुल आधे टाइम में ये सिकने का काम हो जाता है जब सारे बेल के रखे हों इस तरह से। तो आप ये ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये ट्रिक, एंड देन लेट मी नो इफ़ it worked for you, because I've been doing it for a few years and it has been working out very well for me. तो ये मुझे ख़ास आपके साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने ये पराठे का पूरा क्लिप रिकॉर्ड किया। वरना पराठे हम सबको बनाना आता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट अगर आपको बिग बैच में बनाने हैं ना तो ये बहुत कन्वीनियंट है। मैं पूरियाँ भी ऐसे करती हूँ। पूरियों का तो हम वैसे भी कभी कभी करते हैं जब एक अकेला इंसान को सब काम करना होता है। तो कन्वीनियंस और एफिशिएंसी ढूंढना अपने कामों में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें ही फिर सारे पराठे भी सेकने हैं, हमें भी किचन ही भी साफ़ करना है। तो थोड़ी एफिशिएंसी एंड टाइम 5-5 मिनट भी जब बच जाता है तो ओवरऑल एंड ऑफ द डे आपका आधा घंटा बच गया होता है। एंड आधा घंटा इज़ अ गुड टाइम एक कप चाय एंजॉय करने के लिए। तो बस देखो, मेरे सारे पराठे बिल्कुल मस्त सिक के तैयार हो चुके हैं एंड माय लंच और डिनर इज़ रेडी, मटर पनीर एंड पराठास। तो बस आपको फिर से थोड़ा चार्ली से मिलवा देते हैं, मेरा छोटू सा बच्चा, ये उसका कज़न भाई है। होप यू एंजॉय सीइंग चार्ली। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग द टाइम विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।